خدا اے خدا اے خدا اے خدا. خدا کی تلاش. آج ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور ملے گا جو خدا کے وجود سے انکاری ہے، یعنی ملحد ہے. ان کی ملحدانہ سوچ کے پیچھے کیا محرکات ہیں ہم نہیں جانتے، مگر ہم اتنا جانتے ہیں کہ شاید خدائے واحد کے بارے میں ان کا علم ناقص و کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ خدا کے وجود ہی سے انکاری ہو گئے. آپ کے لیے ہم نے پروگراموں کا ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جس کو سن کر آپ سچے، پاک، واحد آسمانی خدا کی خصوصیات کو جان کر ملحدانہ سوچ سے بچ سکتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں پروگرام خدا کی تلاش. تحفظ وہ احساس ہے جو بچپن سے بڑھاپے تک ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہم زندگی کے ہر موڑ پر تحفظ چاہتے ہیں. کبھی رشتوں میں تحفظ ڈھونڈتے ہیں اور کبھی رہنماؤں حکمرانوں میں، کبھی روپے پیسے اور سونے چاندی میں، کبھی بڑے بڑے گھروں میں اور کبھی بڑی بڑی بلٹ پروف گاڑیوں میں، کبھی لمبے چوڑے مونچھوں والے گارڈز کے گھیرے میں اور کبھی گھر کے باہر ڈنڈا بردار پہرے دار بٹھا کے، کبھی چاروں طرف اونچی اونچی دیواریں کھڑی کر کے اور کبھی جگہ جگہ سیکیورٹی کیمرے نصب کر کے. یعنی ہمیں قدم قدم پر حفاظت اور نگہبانی چاہیے ہوتی ہے تاکہ اپنے جان و مال اور خاندان کو ہر مصیبت و تکلیف سے بچائے رکھیں. مگر سوال یہ ہے کہ اپنی حفاظت و نگہبانی کے سارے انتظام کرنے کے باوجود کیا ہم محفوظ ہیں؟ ہم یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ڈرے اور سہمے کیوں رہتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل، اپنی عقل اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں. اسی لیے نہ تو ڈاکے، چوری، قتل و خون اور اغوا و تشدد سے بچ سکتے ہیں اور نہ کسی مہلک وبا اور وائرس سے جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان و بھروسہ اس خالق کائنات پر نہیں جو کل دنیا کا محافظ اور نگہبان ہے. بائبل مقدس میں خداوند خدا فرماتا ہے، تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے داہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کسی آزمائش کی گھڑی میں پھنس جاتے ہیں تو خدا سے حفاظت و نگہبانی کی دعا بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرے اور سہمے بھی رہتے ہیں. مطلب یہ کہ ہماری دعاؤں میں نہ تو اعتقاد ہوتا ہے اور نہ ایمان. التجائیں، آہیں، آنسوں کی جھڑیاں تو ہوتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ شک اور کم اعتقادی بھی ہوتی ہے. آئیے زبور کی الہامی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا پیارا بندہ داؤد نبی اپنے مضبوط ایمان کا کیسے اظہار کرتا ہے. خداوند میری چٹان اور میرا کلا اور میرا چھڑانے والا ہے. میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا، میری سپر اور میری نجات کا سینگ، میرا اونچا برج. اور پھر ایمان اور روح سے سرشار ہو کر اپنے خالق و مالک کے حضور یوں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے. وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے. مجھے جنبش نہ ہوگی. میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے. خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے. اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو. خدا ہماری پناہ گاہ ہے. داؤد نبی ایک چرواہا تھا جو اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت نگہبانی کرتا تھا. خطرناک جنگلوں اور جنگلی جانوروں کا خطرہ ہر وقت سر پر منڈلاتا رہتا تھا، مگر وہ اپنے خداوند کی مدح سرائی میں مگن رہتا تھا. اس دعا میں وہ خدا کو بھی چوپان اور چرواہے کے روپ میں دیکھتا ہے، یعنی اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرنے والا، انہیں ہری ہری چراگاہوں اور پانی کے چشموں کے پاس لے جانے والا، موت کے سائے کی وادی میں ان کی نگہبانی کرنے والا. داؤد نبی کی طرح مسیح کا ہر پیروکار جب دکھوں، تکلیفوں،
पस्तियों, बीमारियों और आजमाइशों की तारीक वादी में से गुजर रहा होता है तो उसके लबों पर यही रूह परवर दुआ होती है जो उसे इत्मीनान, सुकून और आराम बख्शती है। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साये की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। रूह की गहराइयों में उतर जाने वाली ये दुआ खुदाए कुद्दूस के साथ हमारा ताल्लुक और रिश्ता भी जाहिर करती है कि हम उसे कितना प्यार और भरोसा करते हैं। ये दुआ सिर्फ मसीहियों के लिए मखसूस नहीं, आप किसी भी अकीदे और मजहब बल्कि मुल्हिद और इल्हादी ही क्यों ना हो, अगर दुखों, आफतों और बीमारियों की तारीक वादी में से गुजर रहे हैं तो आप भी अपने खालिक और मालिक के साथ टूटा हुआ रिश्ता जोड़कर ये दुआ कर सकते हैं। बहैसियत मसीही हमारा ईमान है कि खुदा हमें किसी भी आफत, मुसीबत और बीमारी से बचा सकता है, मगर ये भी याद रहे कि हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अपने गुनाहों के सबब इलाही सजा के तहत है। अक्सर खुदा हमारी जिंदगियों में ऐसे अजीब तरीके से काम करता है कि हम समझ ही नहीं सकते। हम अपने हालात से तंग आकर खुदा पर इल्जाम धरते हैं कि उसको हमारी कोई परवाह नहीं, हालांकि वो तो अपने बेटे के रूप में एक अच्छा चरवाहा बनकर खुद दुनिया में आया ताकि हमें शैतान के हलाकत खेज पंजे से छुड़ाकर अपनी हिफाजत और निगहबानी में लाए। इसीलिए मसीह का सच्चा और हकीकी पैरोकार दुखों, बीमारियों और आजमाइशों की घड़ी में खौफजदा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा का पाक इल्हामी कलाम क्या कहता है। खुदावंद तेरा मुहाफिज है, खुदावंद तेरे दाने हाथ पर तेरा साहिबान है। न आफताब दिन को तुझे जरर पहुंचाएगा और न महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमद और रफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। दोस्तों, बहनों और भाइयों, खुदा के साए में सुकूनत करने के लिए लाजिम है कि हम पहले उसके मंसूबे और इरादे के मुताबिक मसीह यस्सु के पास आएं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एक तरफ शैतान के साए में गुनाह आलूदा जिंदगी गुजार रहे हों और दूसरी तरफ खुदा कुद्दूस की पनाह और साए में चलने के आरजूमंद भी हों, यानी एक कदम शैतान की कश्ती में और दूसरा खुदा की कश्ती में। फैसला आपका है। अगर आप खुदा की हिफाजत और निगरानी और साए में चलना चाहते हैं तो फिर शैतान की कश्ती को हमेशा के लिए जलाना होगा। उसके सारे शैतानी मंसूबों का डटकर मुकाबला करना होगा, और ये वो काम है जो आप खुद कर ही नहीं सकते। आइए पाक कलाम में कलमबंद उस इल्हामी हिदायत पर गौर करते हैं जिसके वसीले हम इब्लीस के तीरों को बुझा सकते हैं। गरज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपड़ लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। इसका मतलब ये हुआ कि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाने और खुदा के ताबे और हिफाजत में रहने के लिए हमें बिला नागा रूह और सच्चाई से दुआ करना है। लेकिन अगर इब्लीस को भगाने के लिए उठते बैठते रटी रटाई दुआएं ही करते रहे तो वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।
पाक कलाम में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, खुदा ने अपने बेटे मसीह यीशु को सलीब पर कुर्बान किया कि वो इब्लीस के गुनाह आलूदा कामों को मिटाए। पाक इल्हामी कलाम में क्या खूब लिखा है, जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा यानी यसू मसीह इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारा मुहाफिज और निगहबान हो तो हमें उसके मंसूबे के मुताबिक मसीह यीशु को अपना नजात दहिंदा कबूल करना होगा, क्योंकि खुदा का बेगुनाह और पाक बेटा ही है जिसने सलीब पर शैतान और मौत पर फतह पाकर हमारे लिए ये मुमकिन बनाया कि हम रूह और सच्चाई और दलेरी और एतमाद के साथ ये दावा करें, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक के साए में सकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है। वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मौलिक वबा से छुड़ाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू न रात की हैबत से डरेगा, न दिन को उड़ने वाले तीर से, न उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, न उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। मैं उसे उम्र की तराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। खुदा की इस दुआ में एक अजीब सा इत्मीनान और आराम है और अपने लोगों की हिफाजत और निगहबानी का वादा भी, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। शायद आप दुखों, तकलीफों और बीमारियों की तारीक वादी में से गुजर रहे हैं और नहीं जानते कि क्या करें। तो आज आपके लिए मौका है कि रूह और सच्चाई से जिंदा खुदा को पहचान कर उसके ताबे हो जाएं। वो यकीनन आपको हर मुसीबत से छुड़ाकर नजात, सरफराजी, उम्र की दराजी और अबदी इत्मीनान और आराम देगा। जी हाँ, हमारा खुदा इत्मीनान और आराम देने वाला खुदा है और खुदा की यही वो खसूसियत है जिसका हम अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। जरूर सुनिएगा।